چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کہتے ہیں موجودہ سیٹ اپ پاکستان کو تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ سب کو کہتا ہوں جیل سے نہیں ڈرنا، یہ کتنے لوگوں کو جیلوں میں ڈالیں گے۔ رپورٹ دیکھیے لیاقت علی کی۔ پارٹی رہنماؤں سے مشاورت کے بعد قوم سے خطاب۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ 26 سال پہلے تحریک انصاف پارٹی کا نام رکھا تھا۔ انصاف کا مطلب ہوتا ہے کمزور اور طاقتور سب برابر ہوں۔ جتنی زندگی ہے اپنے ملک میں گزاروں گا، جیل سے نہیں ڈرنے والا۔ پاکستانی اگر آج کھڑے نہ ہوئے تو آگے اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ وہ قومیں جو طاقتور کے لیے ایک قانون بناتی ہیں اور وہ جرم کرتے ہیں ان کو نہیں پکڑتی اور صرف کمزوروں کو جیلوں میں ڈالتی ہیں، وہ تباہ ہو جاتی ہیں۔ یہ جو ہر وقت جیل لے کے جانے لگے ہیں، مجھے اس سے کوئی فکر نہیں ہے، اور نہ ہی میں آپ سب کو کہتا ہوں آپ کو یہ جیل سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ جیل کا ڈراوے جی جیل میں ڈال دیں گے، ڈال دیں جیل میں، کتنوں کو ڈالیں گے؟ چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ کیا الیکشن کمیشن کو منشی کہنے پر جمہوریت میں کسی کو پکڑا جاتا ہے؟ اعظم سواتی کے خلاف ایک ٹویٹ کرنے پر 30 مقدمات درج کیے گئے۔ ارشد شریف کے ساتھ ظلم کیا گیا۔ قوم سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کا مستقبل آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ معزز عدلیہ، وکلا سے مخاطب ہوں، یہ وقت ہے وکلا کو رول آف لا کے لیے کھڑا ہونا چاہیے۔ فواد چودھری کو کیوں پکڑا ہے؟ کون سا جرم کیا اس نے؟ کوئی مجھے جمہوریت میں بتائے کہ یہ جرم ہوتا ہے کہ جو اس نے اس کو منشی کہہ دیا، اس کو چیف الیکشن کمیشن؟ کبھی اس کے اوپر بھی کسی جمہوریت میں پکڑا جاتا ہے؟ عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ ملک میں ابھی مزید مہنگائی ہوگی۔ پاکستان کے معاشی حالات کبھی ایسے نہ تھے۔ ملک کے طاقتور ڈاکوؤں نے اپنے 1100 ارب کے کیسز معاف کرا لیے۔ ملک کی سیاست میں ہلچل۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی عمران خان سے ملاقات کے لیے زمان پارک پہنچے۔ سابق وزیر اعلیٰ پرویز الہی کا بھی عمران خان سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ عمران خان نے وکلا سے بھی آئندہ کے لاہے عمل پر مشاورت کی۔ پارٹی کارکنوں نے بھی زمان پارک کے باہر خیمے لگا لیے۔ فاروق حبیب کہتے ہیں ہماری گردنیں حاضر ہیں، ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ زمان پارک میں سیاسی سرگرمیاں مزید تیز ہو گئیں۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کی عمران خان کی رہائش گاہ پر آمد۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی اور چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی ملاقات میں تحریک انصاف کے مرکزی رہنما بھی شریک ہوئے۔ ملکی معاملات، سیاسی صورتحال پر بات چیت کی گئی۔ عمران خان اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کا ٹیلی فونک رابطہ۔ موجودہ سیاسی صورتحال پر طویل مشاورت کی گئی۔ چودھری پرویز الہی کا کہنا تھا کہ پہلے بھی انصاف عدلیہ سے ملا، پختہ یقین ہے کہ اب بھی انصاف انہی سے ملے گا۔ وکلا سے کہتا ہوں حکومتی مظالم کے خلاف فوری عدالتوں سے رجوع کریں۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان سے فواد چودھری کی گرفتاری پر وکلا کی ملاقات ہوئی۔ سلمان اکرم راجہ، احمد پنسوتا، سلمان صفدر اور اظہر صدیق نے ملاقات کی۔ عمران خان کو وکلا نے فواد چودھری کیس کے حوالے سے بریف کیا۔ زمان پارک کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے رہنما پی ٹی آئی فاروق حبیب کا کہنا تھا کہ امپورٹڈ حکومت حواس پاختہ ہو چکی ہے، ان کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں، کب تک طاقتور لوگ انسانی حقوق پامال کرتے رہیں گے؟ ان کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں، یہ عوامی میدان میں آ کے انتخابات سے یہ بھاگ چکے ہیں۔ کوئی اتنا طاقتور ہے کہ وہ عدالتوں کے احکامات کو بائی پاس کر کے، نظر انداز کر کے فواد چودھری کو اسلام آباد لے جاتا ہے؟ مسرت جمشید چیمہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ملک کی مقبول جماعت کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جہاں ہم کھڑے ہیں یہ ہماری ریڈ لائن ہے، اس کو کراس کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ زمان پارک کے باہر کارکنوں نے خیمے لگا لیے۔ کارکن رات گزارنے کے لیے کمبل، رضائیاں، تکیے اور قالین گھر سے ساتھ لائے۔ لیاقت علی، لاہور نیوز۔ لاہور ہائی کورٹ نے فواد چودھری کی بازیابی سے متعلق درخواست خارج کر دی۔ عدالت نے قرار دیا کہ اگر درخواست گزار مقدمے کا اخراج چاہتے ہیں تو اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا جا سکتا ہے۔ رپورٹ دیکھیے محمد اشفاق کی۔ لاہور ہائی کورٹ میں فواد چودھری کی بازیابی سے متعلق درخواست جسٹس طارق سلیم شیخ نے رہنما پی ٹی آئی کی درخواست پر سماعت کی۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور عدالت پیش ہوئے، بیان دیا کہ فواد چودھری پولیس کی تحویل میں نہیں ہے۔ فواد چودھری اسلام آباد پولیس کے پاس ہیں۔ ایڈوکیٹ جنرل جواد یعقوب نے فواد چودھری کے خلاف درج مقدمے کی کاپی عدالت میں پیش کی۔ عدالت میں بیان دیا کہ ایف آئی آر کی بنیاد پر اسلام آباد پولیس نے لاہور کے متعلقہ پولیس اسٹیشن سے رابطہ کر کے گرفتاری کی۔ فواد چودھری مقوی نہیں ہے، ان کے وکلا نے عدالت میں پیش ہو کر بحث کی ہے۔ فواد چودھری کے وکیل نے دلائل دیے کہ سارے معاملے میں پولیس کی بدنیتی شامل ہے۔ جسٹس طارق سلیم شیخ نے استفسار کیا کہ آپ عدالت سے کیا چاہتے ہیں؟ فواد چودھری کے وکیل نے جواب دیا کہ فواد چودھری کی گرفتاری غیر قانونی قرار دی جائے۔ جسٹس طارق سلیم شیخ نے ریمارکس دیے کہ اگر یہ کیس پنجاب میں ہوتا تو ہم دیکھ سکتے تھے، عدالت میں رات تک بیٹھ سکتا ہوں لیکن لائن کراس نہیں کر سکتا۔ عدالت نے فواد چودھری کی بازیابی سے متعلق درخواست خارج کر دی۔
अब आपको बताएं कि साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की मेडिकल लीगल रिपोर्ट मुकम्मल, सेहतमंद करार। फवाद चौधरी की ECG नॉर्मल है, जिस्म पर कोई तशद्दुद के निशान नहीं। ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर मामूल से ज़्यादा थे। मोहम्मद बिलाल की रिपोर्ट देखिए। जुडिशल मजिस्ट्रेट के हुक्म पर फवाद चौधरी का सर्विसेज अस्पताल में मेडिकल चेकअप। MS ऑफिस में साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी का टेस्ट लिया गया। फवाद चौधरी के लिए 4 रुकनी बोर्ड बनाया गया, जिसकी चेयरपर्सन AMS डॉक्टर सहरिश अशरफ हैं। सीनियर रजिस्ट्रार सर्जरी डॉक्टर इमरान, डॉक्टर अमजद मुराद, सीनियर रजिस्ट्रार मेडिकल डॉक्टर सुमेरा बुखारी शामिल। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता रात फवाद चौधरी को बाएं बाजू और सर में शदीद दर्द था। साबिक वफाकी वजीर को पुरानी शिज़ोफ्रीनिया की बीमारी है, जिसके लिए वो होम्योपैथिक अद्वियात इस्तेमाल करते हैं। फवाद चौधरी की शुगर 183 थी, जबकि ब्लड प्रेशर थोड़ा ज्यादा था। PTI रहनुमा के तमाम बेसलाइन टेस्ट ले लिए गए। उनकी ECG भी नॉर्मल थी। फवाद चौधरी के जिस्म पर कोई तशद्दुद के निशान नहीं मिले। फवाद चौधरी ने गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि हम इलेक्शन कमीशन पर तनकीद जारी रखेंगे। अगर ये बगावत है तो पूरे 22 करोड़ अवाम को ये बगावत करनी चाहिए। ये अशराफिया हमारे मुल्क को नहीं चलने देगी। PTI के सीनियर रहनुमा हमाद अजहर, एजाज चौधरी और शहबाज गिल भी सर्विसेज अस्पताल पहुंचे। कैमरामैन उमैर रईस के साथ मोहम्मद बिलाल, लाहौर न्यूज़। एहतजाजी मुजाहिरे और सियासी सरगर्मियाँ ट्रैफिक का धड़न तख्ता हो गया। सड़कों पर ट्रैफिक दबाव के बायस लंबी कतारें लगी रहीं। मिनटों का सफर घंटों पर मुहित हो गया। मुबीन हैदर की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। शहर लाहौर एहतजाज और सियासी सरगर्मियों की जद में। लाहौर की सड़कों पर ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम होकर रह गया। मॉल रोड और कैनाल रोड समेत दीगर शाहराहों पर गाड़ियां बम्पर टू बम्पर रहीं। ट्रैफिक रवानी में खलल के बायस शहर की सड़कों से गुजरना महाल हो गया। शहरियों का कहना था कि ट्रैफिक निज़ाम मुतासिर होने से कई अहम उमूर इल्तवा का शिकार हो गए। ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा बुरा हाल हुआ है। धनपुरे से लेकर मार रोड तक और वहाँ से जे रोड से लेकर मुगलपुरे तक कितनी ट्रैफिक जाम है। टीचर बनता हूँ, ट्यूशन पे पहुँचना है, ड्यूटी के पाबंद है, लेकिन 1.5 घंटा इधर ही लग जाएगा। अब हम जाएंगे उधर 1 घंटा, क्या पढ़ाएंगे, किस टाइम वापस आएंगे, कब खाना खाएंगे, तो ये चीज़ से दुख होता है। किसी भी पार्टी का नहीं हो, लेकिन इंसानियत के लिए लोगों को तंग ना करें प्लीज़। सारा दिन घंटा जलील होते हैं यहाँ पे, पेट्रोल फूल लेदर, हमारा पैसे ज़ाया होते हैं। ट्रैफिक में एम्बुलेंसेस समेत दीगर गाड़ियां भी घंटों ट्रैफिक में फंसी रहीं। ट्रैफिक पुलिस ने बिला जरूरत सफर न करने की हिदायत जारी की है। 2 रातें गुजर गई। तहरीक इंसाफ के कारकुनों की बड़ी तादाद जमान पार्क के बाहर मौजूद। कुछ कारकुनों ने टेंट तले जबकि कुछ ने खुले आसमान तले रात गुजारी है। इस बारे में मजीद तफसीलात हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अली से जानते हैं। मोहम्मद अली, आगाह कीजिएगा। आज दूसरी रात भी ख़त्म हो चुकी है और दूसरे दिन का आगाज़ हो चुका है और जितने भी कारकुन थे वो गुज़श्ता 24 घंटे के कबल यहाँ पे पहुँचे थे और इन्होंने शिफ्ट वाइज यहाँ पे ड्यूटियाँ दी 8-8 घंटे। अब आज के शेड्यूल भी इनका यही तरतीब दिया गया। आज खान साहब से अहम मुलाकातें होंगी पार्टी रहनुमाओं की। इनका जो सा लीगल सेल है वो भी इनसे मुलाकात करेगा, जबकि दूसरी जानिब जो सा हुकूमत की जानिब से भी कहा जा रहा है कि आला पुलिस अफसरान आज साथ जोड़ेंगे कि ये इस मामले को किस तरह इसको सॉल्व करना है, क्या इनको यकीन दहानी करानी है या नहीं, अरेस्ट करना है या नहीं, कोई मुकदमा दर्ज होना है या नहीं। अभी तक कोई FIR खान साहब के हवाले से लाहौर समेत किसी भी थाने में दर्ज नहीं की गई, पंजाब के भी किसी थाने में दर्ज नहीं की गई। अगर कोई ऐसा प्लान गवर्नमेंट का है तो वो भी मंजरेआम पे आ जाएगा। गुज़श्ता रात जब ऐसा वाक़ा हुआ था तो तकरीबन जो फवाद चौधरी साहब को अरेस्ट किया गया, उसका FIR भी दर्ज हुई और उसका मुकदमा भी मंजरेआम पे आया, जिसके बाद उन्हें लाहौर से इस्लामाबाद शिफ्ट कर दिया गया था। एक कंटेनर यहाँ पे पहुँचा है जिस पे लिखा हुआ है कि इलेक्शन करवाओ मुल्क बचाओ। एक नया स्लोगन दिया है इन्होंने आज। कंटेनर जो है उसकी लंबाई तकरीबन 25 फुट है और तकरीबन 20 फुट ऊंचा है, जिस पे बड़ी बड़ी फ्लैक्स अवेज़ा कर दी गई हैं खान साहब की, उनके साथ दीगर पार्टी अहदेदारान जो से। इस वक्त जो है गवर्नर कुछ देर कबल जो है गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान वो यहाँ पे मौजूद थे। वो यहाँ से रवाना हो चुके हैं, अपनी रिहाइशगाह पे गए हैं। आज जैसे दिन का आगाज़ होगा 9 बजे के बाद दोबारा फिर पार्टी क़यादत यहाँ पे पहुँचना शुरू होगी। नाश्ते का एहतमाम किया गया हलवा पूरी का उनके लिए और मेरे बिल्कुल बैक पे ख़वातीन का कैंप था जिसमें ख़वातीन ने रात गुजारी। मेरे राइट और लेफ़्ट दोनों साइडों पे जो से मर्द थे और तमाम जितने भी MNA MPs थे तमाम ने अपने हल्का वाइज जोनल जो कमेटियाँ बनाई हैं उस लिहाज से उन्होंने तरतीब दिए थे, जिनमें उन्हें खाना भी रात को प्रोवाइड किया गया और अब नाश्ता भी दिया जाएगा। जबकि आज सुबह 9 बजे इनकी दोबारा शिफ्ट चेंज होगी, जिसके बाद पार्टी रहनुमा जो लोकल जितनी भी क़यादत है वो फिर दोबारा यहाँ पे पहुँचेगी और सारा दिन दमस्तल अंदर होगा। सड़कों पे आपने पहले भी जिक्र किया कि सड़कों पर जो रश है वो केनाल पे बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह यह है कि केनाल पे माल से लेके ज़मान पार्क के एंड तक
गाड़ियों की लंबी कतारें जो रात के भी थी और अब भी इस वक्त मौजूद हैं। ट्रैफिक सिग्नल्स की जो उनसी खिलाफ वर्जी वो रूटीन में देखने में आई थी, लेकिन अब इन्होंने लिफ्टर मंगा लिए ताकि जो उनसे जो गाड़ियाँ रॉन्ग पार्किंग पे होंगी उनको उठाया जाएगा, उनकी तरतीब सीधी की जाएगी ताकि केनाल रोड पे ट्रैफिक रवा दम रहे। एम्बुलेंसेस का मसला था, वो भी गुज़श्ता रोज़ भी हमने देखा है बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना रहा। जो स्कूल्स हैं बच्चों के, हमारी इस ज़मान पाक के बिल्कुल राइट साइड पे एक अहम तालीमी इदारा है जिसका रश उनसे सुबह दोपहर 2 टाइम बहुत ज़्यादा होता है। सैकड़ों की तादाद में बच्चे गाड़ियों में आते हैं, जिसके बाद जो उनसे उनको वापस भी वालिदैन ने ले जाना होता है। ये मंजर था गुज़श्ता रोज़ और गुज़श्ता रात का। आज का दिन शुरू हो चुका है, फिर एक बार यहाँ पे मैदान सजेगा और नारेबाजी रूटीन के अंदर हो रही थी। आरिफ अलवी की जो मुलाकात थी सदर पाकिस्तान की, वो देखते हैं कि आज वो क्या रंग लाती है। क्या वो वज़ीर आज़म को कन्विंस कर पाएंगे, क्या वो अहम सियासी राब्ते कर पाएंगे, या कुछ ऐसी मुलाकातें होंगी जिससे जौन सा इनके जो खदशात हैं उनको दूर किया जा सके। क्या वो इस यकीन दिलाने में इमरान खान साहब को कामयाब हो सकेंगे कि हुकूमत उनके खिलाफ जो सी वो मुकदमा दर्ज नहीं करेगी, या जो मुकदमा दर्ज किए जा चुके हैं उनके रहनुमा के खिलाफ उनको किस तरह ख़त्म किया जा सकता है। ये बहुत सारे सवालात हैं जो आज की जो अहम मीटिंग्स के बाद जो से वो मंजरे आम पे आएंगे, लेकिन इब्तदाई मालूमात के मुताबिक कोई मुकदमा खान साहब के खिलाफ दर्ज नहीं है। ये जो एक उन्होंने अफवाह फैलवाई थी या फैली गई जो इस मामले में शामिल था, लेकिन उससे ये हुआ कि ये पार्टी एक्टिव हुई, जो ताकतें उसके पीछे थी इनको एक्टिव करने के हवाले से वो भी उन्होंने भी देख लिया कि ये तमाम कारकुन जहाँ पे मौजूद है अभी तक। अब देखते हैं कि आज का दिन कैसे गुजरता है। अगर कोई अदालती अहकामात पीटीआई लेने में कामयाब होती है कि कोई ऐसा अरेस्ट वारंट ना निकाला जाए या कोई ऐसी एफआईआर न की जाए जिसमें बिला वजह इनको मुलविस किया जाए, वो भी बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होगी। ये मेरे बैक पे भी जो से लोग नारेबाजी कर रहे हैं और ये सिलसिला रात भर जारी रहा था, जबकि दूसरी जानिब जितने भी जी ठीक है मोहम्मद अली, आप हमें तफसीलें लगा कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर मलिक सैफुल मलूक खोखर की मज़ार अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह पर हाज़री। मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो और नवाज शरीफ गिरफ्तार हो सकते हैं तो इमरान खान क्यों नहीं, इंतखाबात हुए तो पता चल जाएगा। रिपोर्ट देखिए सलमान तारिक की। मुस्लिम लीग नून लाहौर की सदारत संभालते ही मलिक सैफुल मलूक खोखर की मज़ार अली हजवेरी पर हाज़री, फूलों की चादर चढ़ाई, फातिहा खानी और मुल्की सलामती के लिए दुआ की गई। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मलिक सैफुल मलूक खोखर का कहना था कि लीगी रहनुमाओं की गिरफ्तारियों पर तालियां बजाने वालों के साथ मकाफात अमल हो रहा है। मकबूलियत का दावा करने वालों का इलेक्शन करवाएं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये गिरफ्तार हुए हैं, ये अदालत का मसला है, जायज़ है या नाजायज़ है ये सामने आ जाएगा। इतना चीखे ना, वो भी वक्त याद करें जब आप तालियां बजाते थे, वक्त से पहले बता देते थे कि उसने गिरफ्तार होना है, उसने गिरफ्तार होना है। नून वाले ये नहीं कर रहा, हमें इल्म ही नहीं, ये केयर टेकर गवर्नमेंट है, उनका फैसला है, जो सच है सच होगा, नजायज़ है तो नजायज़ है, ये ज़्यादती नहीं होगी। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर का मजीद कहना था कि मरियम नवाज का तारीखी इस्तकबाल किया जाएगा, पंजाब को मुस्लिम लीग नून का गढ़ बनाकर ही दम लेंगे। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ सलमान तारिक, लाहौर न्यूज़। अब आपको बताएं कि पंजाब में बड़े पैमाने पर अफसरों के तकर्रुर तबादले किए गए। डीजी एंटी करप्शन नदीम सरवर को ओहदे से हटा दिया गया। मुतअद्दिद सेक्रेटरीज की SNGAD रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब में बड़े पैमाने पर उखाड़ पछाड़, मुतअद्दिद अफसरों को तब्दील कर दिया गया। डीजी एंटी करप्शन नदीम सरवर को ओहदे से हटा दिया गया। सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन जमान वट्टू को डीजी एंटी करप्शन पंजाब का इजाफी चार्ज दे दिया। सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर मोहम्मद हयात लक को भी OSD बना दिया गया। सेक्रेटरी लिटरेसी वजीहुल्लाह कुंडी को सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर का इजाफी चार्ज तफवीज। सेक्रेटरी हाउसिंग अहमद मुस्तजाब करामत को ओहदे से हटाकर SNGAD रिपोर्ट करने का हुक्म। रजिस्ट्रार पंजाब कोऑपरेटिव सोसाइटीज असद नदीम और सेक्रेटरी मादनियात नजम इकबाल सैयद को भी ओहदे से हटा दिया गया। DGPR पंजाब राव परवेज को ओहदे से हटा दिया गया। सेक्रेटरी इतलात सलवत सईद को DGPR पंजाब का इजाफी चार्ज दे दिया। कमल बतूल डायरेक्टर एडमिन गुजरांवाला डेवलपमेंट अथॉरिटी को भी ओहदे से हटा दिया। डिप्टी कमिश्नर मंडी बहाउद्दीन तस्नीम अली को ओहदे से हटा दिया। अब्बास जुल्करनैन को इजाफी चार्ज तफवीज। डिप्टी कमिश्नर गुजरात आमिर शहजाद को ओहदे से हटाकर मोहम्मद औरंगजेब को इजाफी चार्ज दे दिया। डिप्टी कमिश्नर वजीराबाद नवीदुल सलाम विर्क को ओहदे से हटाकर SNGAD रिपोर्ट करने
का हुक्म। अशफाक अहमद खान को डिप्टी कमिश्नर वजीराबाद की इजाफी जिम्मेदारी मिल गई। सेक्रेटरी मवासलात आसिफ बिलाल लोधी को ओहदे से हटाकर हुमैरा इकराम को जिम्मेदारी दे दी। CEO एजुकेशन लाहौर तारिक हबीब फारूकी को नाकिस कारकर्दगी पर मुअत्तल कर दिया गया। तारिक हबीब फारूकी के खिलाफ पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। DEO एलिमेंट्री मोहम्मद शफीक ताहिर को CEO एजुकेशन का इजाफी चार्ज दे दिया गया। 3 माह बाद अली रजा को एंटी करप्शन लाहौर में स्पेशल जज तैनात कर दिया गया। उन्होंने अपने ओहदे का लाहौर एयरपोर्ट पर FIA इमिग्रेशन हुकाम ने 55 लाख से ज़ायद मालियत की गैरकानूनी गैर मुल्की करेंसी की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। राहिल अली की रिपोर्ट देखिए। लाहौर एयरपोर्ट पर FIA इमिग्रेशन हुकाम ने दुबई जाने वाले मुसाफिर से 55 लाख से जायद मालियत की गैर मुल्की करेंसी बरामद कर ली। मुलजिम नाकाश जावेद फ्लाइट 733 से दुबई जा रहा था। शक पड़ने पर शिफ्ट इंचार्ज रजिया परवीन ने मुसाफिर के सामान की चेकिंग करने की हिदायत की। मुसाफिर से 20,500 यूरो और 11,000 रियाल बरामद हुए। FIA हुकाम के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। दूसरी जानिब कस्टम इंटेलिजेंस ने मुल्तान रोड पर कार्रवाई करते हुए 120 मिलियन रुपए के स्मगल शुदा इंजन, टायर्स, एल्यूमिनियम समेत दीगर सामान कब्जे में ले लिया। 65 मिलियन मालियत की स्मगल शुदा लग्जरी गाड़ी भी जब्त कर ली। कस्टम हुकाम ने गाड़ी छुड़वाने के एवज रकम का तकाजा करने वाले जाली कस्टम इंस्पेक्टर महर अख्तर को भी गिरफ्तार करवाया। एडिशनल डायरेक्टर कस्टम इंटेलिजेंस रिजवान बशीर का कहना है कि स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। CTD की कार्रवाई की गई है। लाहौर से एक मुश्तबा शख्स को हिरासत में ले लिया गया। CTD हुकाम के मुताबिक लाहौर के सरहदी इलाके बाटापुर से एक मुश्तबा शख्स को हिरासत में लिया गया। मंडी बहाउद्दीन, नारोवाल, जहलम से 3 मुश्तबा अफराद को पकड़ा गया है। गिरफ्तार अफराद को तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। यंग डॉक्टर्स एक बार फिर सड़कों पर आ गए। सर्विसेज अस्पताल, जेल रोड और GOR1 में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। YDA के रहनुमा आतिफ चौधरी का कहना था कि डॉक्टर्स की तनख्वाहों में डबल इजाफा किया जाए। मुतालिबात तस्लीम ना हुए तो एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। रिपोर्ट देखिए मोहम्मद बिलाल की। तनख्वाहों में इजाफा, हस्पतालों की सिक्योरिटी के इंतजामात का मुतालिबा। यंग डॉक्टर्स एक बार फिर सरापा एहतजाज बन गए। यंग डॉक्टर्स का सिम्स ऑडिटोरियम में कन्वेंशन के बाद एहतजाजी मुजाहरा। सर्विसेज अस्पताल, जेल रोड और GOR1 में एहतजाजी धरना दिया गया। यंग डॉक्टर्स अपने मुतालबात के हक में नारेबाजी करते रहे। YDA के रहनुमा डॉक्टर आतिफ चौधरी का कहना था कि एक बेड पर एक मरीज की पॉलिसी बनाई जाए। अस्पतालों में फ्री अद्वियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। शफाफ निज़ाम के जरिए डॉक्टर्स की नई भर्तियाँ की जाएं। जो हमारे इश्यूज़ हैं डॉक्टर्स के, जैसे पे रेज का इशूज़ है, जैसे सिक्योरिटी का इशूज़ है, वन पेशेंट वन बेड का इशू है। हम जेल रोड के ऊपर गए, हमने तब भी वहाँ कहा कि यार हमारी बात सुने, हमारे साथ अच्छे मुज़ाकरात किए जाएँ। आप GOR के सामने बैठे हैं, हम चाहते हैं कि ये हमारी बात सुने, और अगर ये हमारी बात नहीं सुनेंगे तो ये खुद कोशिश करेंगे कि हम मजबूर हो जाएं कि हम पूरे पंजाब के हॉस्पिटल्स बंद करें। यंग डॉक्टर्स ने ये भी मुतालिबा किया कि एडहॉक और कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती डॉक्टर्स को मुस्तकिल किया जाए। जब तक मुतालबात पूरे नहीं होते एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। सरकारी मुलाजमीन एक मरतबा फिर सड़कों पर आ गए। बिजली की तकसीम कार कंपनियों की नजकारी के खिलाफ पाकिस्तान वाप्टा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन सरापा एहतजाज हैं। लेस्को हेडक्वार्टर्स के सामने मुजाहरा किया गया। फहद अमीन की रिपोर्ट देखिए। बिजली की तकसीम कार कंपनियों की निजकारी और लेस्को के हाई लॉसेस फीडर्स को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाने का फैसला नामंजूर। पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन का लेस्को हेडक्वार्टर्स के सामने मुजाहरा। जनरल सेक्रेटरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन खुर्शीद अहमद समेत दीगर ओहदेदार व मुलाजमीन शरीक हुए। मुलाजमीन ने लेस्को के तमाम दफातर में काम छोड़ा और मुजाहरा किया। खुर्शीद अहमद का कहना था कि निजकारी का फैसला किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या गवर्नमेंट कहती है कि हम निजकारी सोच रहे हैं, खास तौर पे तकसीम है अपने मीटरों की, बिलों की, वो प्राइवेट आदमी करें। मैं पूछता हूँ कि जहाँ बिजली जहाँ निजकारी हुई है, क्या हमारे आदमी कम हैं जो दोनों काम कर रहे हैं? मुजाहिरीन ने कहा कि फीडर्स को निजी ठेकेदारों के स्पुर्द करना दुरुस्त नहीं। कौमी इदारों को किसी सूरत फरोख्त नहीं होने देंगे। ये जो अशराफिया और जितने सियासतदान हैं जो हमारे मुनाफा बख्श जो महकमे हैं उनको प्राइवेटाइजेशन जो कर रहे हैं, उसके खिलाफ, निजकारी के खिलाफ हम सरापा एहतजाज हैं। निजकारी के खिलाफ जो है ना वो इकट्ठे हुए हैं। हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि निजकारी को जो है ना बंद करें। मुजाहरे की वजह से क्वींस रोड मुकम्मल तौर पर ब्लॉक हो गया, जिससे ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम रहा।
गैस की बंदिश और कम प्रेशर में कमी की शिकायत बढ़ने पर इंतजामिया मुतहरिक हो गई। सुई गैस कंपनी ने कंप्रेसर इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी। सुई गैस इंतजामिया का कहना है कि कंप्रेसर इस्तेमाल करने वालों के मुनक़ता कनेक्शन मौसम सरमा में बहाल न करने का फैसला किया गया है। 2 माह के दौरान 3000 कनेक्शन मुनक़ता कर दिए गए। सिर्फ लाहौर रीजन में कंप्रेसर इस्तेमाल करने पर 875 कनेक्शन काटे गए थे। लाहौर हाई कोर्ट में LDA मास्टर प्लान 2050 को कल अदम करार देने की दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने ताहुक्म सानी मास्टर प्लान पर अमल दरामद रोकने के हुक्म इम्तनाई में 15 रोज़ की तोसी कर दी। मोहम्मद इशफाक की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। LDA मास्टर प्लान 2050 को कलअदम करार देने की दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने शहरी मियां अब्दुल रहमान की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त में चीफ सेक्रेटरी पंजाब, LDA, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन और रूडा को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त गुजार के वकील ने बताया कि अदालती हुक्म के बरक्स रूडा कानून के तहत मास्टर प्लान 2050 का निफाज कर दिया गया है, जिसके तहत न सिर्फ दरख्तों को काटने का खदशा है बल्कि लाहौर के इर्द गिर्द सब्जा भी मुतासिर होगा। अदालत मास्टर प्लान 2050 को बदनीयती पर मबनी और गैर कानूनी करार दे। दौरान समाअत अदालत को बताया गया कि दरख्वास्त गुजार के वकील सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ होने की बिना पर पेश नहीं हुए। LDA की जानिब से कानूनदान सुलेमान असलम भट्ट ने तहरीरी जवाब दाखिल करवाया। तहरीरी जवाब में दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर एतराज कर दिया गया। जवाब में कहा गया कि दरख्वास्त गुजार मुतासरा फरीक नहीं है, ऐसे में दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देते हुए मुस्तरद की जाए। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब मखदूम अली टीपू ने दरख्वास्त की मुखालिफत की। अदालत ने ताहुक्म सानी मास्टर प्लान पर अमल दरामद रोकने के हुक्म इम्तनाई में 15 रोज की तोसी कर दी। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। समनाबाद क्रिकेट स्टेडियम का संगे बुनियाद रखने के बाद पंजाब हुकूमत मंसूबे को भूल गई। LD की कई दरखास्तों के बावजूद फंड्स जारी ना हो सके। दीगर मंसूबों की माने समनाबाद क्रिकेट स्टेडियम की तामीर भी खदशात का शिकार हो गई है। ये रिपोर्ट देखिए। परवेज इलाही के दौरे हुकूमत में समनाबाद में नए क्रिकेट स्टेडियम का मंसूबा बनाया गया। LDA ने मंसूबे की मंजूरी लेने के बाद इस मंसूबे के लिए तकरीब का इनेकाद भी किया। साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने मंसूबे का संगे बुनियाद रखा। मंसूबे का संगे बुनियाद रखने के बाद पंजाब हुकूमत मंसूबे को भूल गई। समनाबाद क्रिकेट स्टेडियम की तामीर के लिए 66 करोड़ रुपए का तखमीना लगाया गया। समनाबाद क्रिकेट स्टेडियम के लिए LDA के खजाने में कोई रकम मौजूद नहीं है। LDA ने पंजाब हुकूमत को फंड्स के इजरा के लिए इस्तदा कर दी। पंजाब हुकूमत को भेजी गई समरी में 50 करोड़ रुपए के फंड्स मांगे गए हैं। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। रुपए की कदर में कमी और डॉलर के रेट में इजाफे से ऑरेंज ट्रेन का कर्ज भी बढ़ गया। एक्सिम बैंक चाइना से 1 अरब 67 करोड़ डॉलर कर्ज का रेट भी दुगना हो गया। महकमे खजाना पंजाब ने कर्ज की वापसी से मुतल्लिक रिपोर्ट तैयार करना शुरू कर दी। पंजाब हुकूमत ने 2014 में एक्सिम बैंक चाइना से 1 अरब 67 करोड़ डॉलर कर्ज लिया। 2014 में कर्ज लेने के वक्त डॉलर की कीमत 101 रुपये थी। 2022 और 23 में एक्सिम बैंक चाइना को कर्ज वापसी का अमल शुरू किया जाएगा। 2014 के निस्बत 2023 में डॉलर कदर रुपए के मुकाबले में ज़्यादा हो गई। डॉलर की कदर डबल होने की वजह से पाकिस्तानी रुपयों में ऑरेंज ट्रेन का कर्जा भी डबल हो गया। ऑरेंज ट्रेन का कर्ज पाकिस्तानी रुपयों में 393 अरब रुपए से तजावुज़ कर गया। पार्किंग कंपनी के जिम्मेदारों के दावे हवा हो गए। सुपरवाइजर्स और इंस्पेक्टर निकालने का फॉर्मूला भी कंपनी को खसारे से ना बचा सका। पार्किंग कंपनी का बोर्ड तहलील हो गया। कंपनी की 67 साइट्स माफिया के शिकंजे में हैं। रोज़ाना 3 लाख और माहाना 2 करोड़ 70 लाख का खसारा सामने आ गया। इमरान अकबर की रिपोर्ट देखिए। लाहौर पार्किंग कंपनी को खसारे से न निकाला जा सका। 244 रजिस्टर्ड पार्किंग साइट से 67 साइट्स कागजों में मौजूद। रेवेन्यू में एक ढेला जमा न हुआ। लाहौर पार्किंग कंपनी को यौमिया लाखों रुपए के खसारे का सामना है। 244 पार्किंग साइट्स मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन लाहौर से नोटिफाइड हैं। 164 पार्किंग साइट से पार्किंग फीस ओवरचार्ज करने का इंकशाफ। मोटरसाइकिल पार्किंग फीस 10 रुपए की बजाय 20 से 30 रुपए लिए जा रहे हैं। कार फीस 30 रुपए की बजाय 50 से 100 रुपए तक ओवर चार्जिंग की जा रही है। 244 पार्किंग साइट्स में से 20 पार्किंग साइट्स पर ट्रेड यूनियन और पार्किंग माफिया का कब्जा है। ऑल रोड, ग्लैमर मार्केट, लंडा मार्केट की पार्किंग साइट्स पर माफिया काबज। माशाल्लाह सेंटर, बिस्मिल्लाह सेंटर, दाता दरबार पार्किंग साइट्स पर भी पार्किंग माफिया का कब्जा है। 67 पार्किंग साइट्स कागजों में गैर फाल हैं।
इन पार्किंग साइट से फीस वसूल की जा रही है, लेकिन खजाने में 1 रुपया भी जमा नहीं किया जाता। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद आमिर जान का कहना है कि 67 पार्किंग साइट्स काबिज़ीन से वापस लेकर दी जाएंगी। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। महकमा एक्साइज मोटर ब्रांच लाहौर का टोकन टैक्स डिफॉल्टर्स और गैर रजिस्टर्ड गाड़ियां रखने वालों के खिलाफ एक्शन। करोड़ों रुपए की रिकवरी के लिए महकमे की जानिब से जनरल होल्डअप किया गया। राहील अली की रिपोर्ट देखिए। महकमा एक्साइज मोटर ब्रांच लाहौर का टोकन टैक्स डिफॉल्टर्स और गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज। 85,000 टोकन टैक्स डिफॉल्टर्स से करोड़ों रुपए की रिकवरी के लिए शहर में 6 टीमें मुतहर्रिक। लिबर्टी चौक, शाहदरा, रिवाज गार्डन और डिफेंस समेत दीगर इलाकों में नाके लगाए गए। टीमों में शामिल इंस्पेक्टर्स व दीगर एहलकारों ने ई पे सिस्टम पर गाड़ियों के टोकन चेक किए। डिफॉल्टर्स गाड़ियों से मौका पर ही ई पे के जरिए टोकन जमा किए गए। अदायगी न करने वालों के कागजात जब्त कर लिए गए। एक्साइज एंड टैक्सेशन अफसर जुल्फकार भट्ट का कहना था कि जनरल होल्डअप से टोकन टैक्स रिकवरी में मदद मिलेगी। जनरल होल्डअप एवरी वेडनेसडे को हुआ करेगा, लेकिन हम रोड चेकिंग जो है ना, हमारी टीमें ऑफिस के 3 से 5 बजे तक डेली बेसिस पे हम उसको कंडक्ट करेंगे। ईटीओ नासिर महमूद का कहना था कि रोजाना 3 से 5 बजे तक डिफॉल्टर्स गाड़ियों की चेकिंग होगी, जबकि हर हफ्ते और बुध के रोज जनरल होल्डअप किया जाएगा। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ राहील अली, लाहौर न्यूज़। वासा के 2 बड़े मंसूबे दरामदात पर पाबंदी के सबब शदीद मुतासिर हो गए। दरामदात बंद होने की वजह से वासा ने प्लास्टिक रिकम्पोजिट के मैन होल कवर्स बनाने का इरादा ही तर्क कर दिया। वासा के 2 बड़े मंसूबे प्लास्टिक रिकम्पोजिट के मैन होल कवर्स और वाटर मीटर्स प्रोजेक्ट मुतासिर हुए। प्लास्टिक रिकम्पोजिट के मैन होल कवर बनाने के लिए प्लास्टिक को दरामद करना पड़ेगा। प्लास्टिक की दरामद के लिए ताहाल वफाकी हुकूमत की जानिब से इजाज़त नहीं दी कि 7 लाख वाटर कनेक्शंस पर वाटर मीटर्स की तनसीब का मामला भी गोल हो गया। वाटर मीटर्स की तनसीब के लिए वज़ा करदा टाइमलाइन पर अमल नहीं हो सका। वासा इंतज़ामिया का कहना है कि इंपोर्ट बंद होने की वजह से मसाइल का सामना है। अब आपको बताएं कि मुर्गी के गोश्त की कीमत में मुसलसल इजाफा। ब्रॉयलर गोश्त मज़ीद 9 रुपये फ़ी किलो महंगा हो गया। मुर्गी के गोश्त की कीमत 516 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर। 3 दिनों में ब्रॉयलर 15 रुपये किलो महंगा हो गया है। अंडों की कीमत 289 रुपये दर्जन की सतह पर बरकरार है। आपको बताएं कि मुर्गी के गोश्त की कीमत में मुसलसल इजाफा जारी है। ब्रॉयलर गोश्त मज़ीद 9 रुपये फ़ी किलो महंगा हो गया। मुर्गी के गोश्त की कीमत 516 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई। 3 दिनों में ब्रॉयलर 15 रुपये किलो महंगा हो गया है। अंडों की कीमत में इस्तेहकाम है। अंडों की कीमत 289 रुपये दर्जन की सतह पर बरकरार है। आपको अपडेट किया जा रहा है कि मुर्गी के गोश्त की कीमत में मुसलसल इजाफा जारी है। ब्रॉयलर गोश्त मज़ीद 9 रुपये फ़ी किलो महंगा हो गया। मुर्गी के गोश्त की कीमत 516 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर। 3 दिनों में ब्रॉयलर 15 रुपये किलो महंगा हुआ है। वहादत कॉलोनी पुलिस की कार्रवाई की गई। लोहे के जंगले और मोटरसाइकिल चोरी करने वाला गिरोह गिरफ्तार। गिरफ्तार मुलजिमान में काशिफ उर्फ सनी, रहीम और सलमान शामिल। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। मज़ीद तफ्तीश जारी है। इस बारे मज़ीद जानते हैं मुजाहिद लतीफ़ से। मुजाहिद, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल ये गैंग जो गिरफ्तार हुआ है, इसको वहादत कॉलोनी पुलिस ने गिरफ्तार किया है और ये लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में खासकर जो पार्क्स हैं उनके जो लोहे का जो होता है वो सामान वो चोरी करने की वारदातें करते हैं और लाखों रुपए मालियत की जो सामान है वो इनसे बरामद किया गया है। और इसके साथ साथ ये मोटरसाइकिल चोरी करते हैं और वायर लॉक और हैंडल लॉक जो है वो खोलने के बहुत एक्सपर्ट हैं। पुलिस ने इनके खिलाफ इनको जब गिरफ्तार किया तो इनसे तकरीबन लाखों रुपए मालियत का लोहा और उसके अलावा मोटरसाइकिलें, पिस्तौल और दीगर सामान जो है वो बरामद किया है। पुलिस मजीद इस बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि चोरी शुदा जो सामान है, मोटरसाइकिलें हैं, ये जंगले जो होते हैं पार्कों में लगाए गए, ये और मजीद कहाँ पे जाकर फरोख्त करते थे और कहाँ पर इसको जो है सेल किया जाता था, इसके बारे में भी तफ्तीश की जा रही है। लेकिन मुलजमान जो है वो मुतअद्दिद लाहौर के मुकदमात में पुलिस को मतरूफ थे, जिनमें चोरी की वारदातें, मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें सैर फहरिस्त है। जी ठीक है मुजाहिद, आपका शुक्रिया। शोबा तालीम का रुख करते हैं। नए साल के लिए मुफ्त किताबों की तैयारी रोकने का खदशा पैदा हो गया। किताबों की तैयारी के लिए फंड्स रोक लिए गए। महकमा स्कूल एजुकेशन ने फंड्स की समरी रोक ली। टेक्स्ट बुक बोर्ड ने किताबों की तैयारी के लिए 14 अरब के फंड्स मांगे थे।
محکمہ اسکول ایجوکیشن نے سمری پر اعتراضات لگا دیے۔ گزشتہ سال کتابوں کی تیاری پر 7 ارب روپے خرچ ہوئے تھے۔ گزشتہ سالوں کی نسبت لاگت میں دو گنا اضافہ ہو گیا۔ ٹیکسٹ بک بورڈ نے پبلشرز کے فنڈ سے روک لیے۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے کھیلوں کے حوالے سے کیلنڈر جاری کر دیا۔ اگست میں اسکولوں میں ٹیبل ٹینس اور بیڈمنٹن کے مقابلے ہوں گے۔ کھیلوں سے متعلق جاری کیلنڈر کے مطابق ستمبر میں فٹ بال، ریسلنگ، کراٹے کے مقابلے ہوں گے۔ نومبر میں کرکٹ، ہاکی سمیت دیگر کھیلوں کے مقابلے منعقد کیے جائیں گے۔ انٹر ڈویژن کے مقابلوں کا انعقاد صوبائی لیول پر ہوگا۔ ایجوکیشن اتھارٹیز کو کیلنڈر کے مطابق کھیلوں کا انعقاد کرنے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ اب آپ کو بتائیں کہ دھند ختم ہونے کے باوجود ٹرین شیڈیول بدستور متاثر ہے۔ کراچی اور کوئٹہ سے لاہور آنے والی تمام ٹرینیں گھنٹوں تاخیر کا شکار ہوئیں۔ مسافروں کو شدید پریشانی کا سامنا رہا۔ فہد امین کی رپورٹ دیکھیے۔ ٹرین کے مسافروں کی مشکلات کم نہ ہو سکیں۔ کراچی اور کوئٹہ سے لاہور آنے والی تمام ٹرینیں گھنٹوں تاخیر کا شکار رہیں۔ کراچی سے آنے والی ملت ایکسپریس 3 گھنٹے 35 منٹ، کراکرم ایکسپریس 3 گھنٹے 30 منٹ لیٹ ہوئی۔ کراچی ایکسپریس 3 گھنٹے 20 منٹ، رحمان بابا ایکسپریس 3 گھنٹے 15 منٹ تاخیر کا شکار رہیں۔ پاک بزنس ایکسپریس 3 گھنٹے، علامہ اقبال ایکسپریس 2 گھنٹے 50 منٹ لیٹ ہوئی۔ تیزگام 2 گھنٹے 40 منٹ، پاکستان ایکسپریس 1 گھنٹہ 50 منٹ تاخیر سے پہنچی۔ جعفر ایکسپریس 1 گھنٹہ 45 منٹ، خیبر مل 1 گھنٹہ 35 منٹ لیٹ ہوئی۔ فرید ایکسپریس 1 گھنٹہ 25 منٹ تاخیر سے پہنچی۔ ٹرینیں لیٹ ہونے سے شدید سردی میں مسافروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ کپس اسکولز کی سالانہ تقریب تقسیم انعامات، طلباء نے ملی نغموں اور ڈرامہ پرفارمنس سے حاضرین کے دل جیت لیے۔ تقریب کے مہمان خصوصی ڈاکٹر عمران اور ڈاکٹر سجاد تھے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔ کپس اسکولز کی سالانہ تقریب تقسیم انعامات کا دوسرا اور آخری روز الحمرہ ہال میں خصوصی تقریب سجائی گئی۔ تمام کیمپسز سے طلباء اور طالبات کی کثیر تعداد میں شرکت۔ تقریب میں طلباء اور طالبات نے اپنی صلاحیتوں کا خوب مظاہرہ کیا۔ ملی نغموں اور اقبال کی شاعری پر طلباء نے پرفارم کیا۔ طلباء نے شیکسپیئر کے مشہور ڈرامے میکبیتھ کو پیش کیا، جس کو حاضرین نے خوب سراہا۔ تقریب کے مہمان خصوصی چیف کنسلٹنٹ ڈاکٹر عمران اور ڈاکٹر سجاد تھے، جبکہ ڈائریکٹر کپس خالد وزیر خان، ریجنل مینیجر کپس کیپٹن ریٹائرڈ محمد خالد بھی شریک ہوئے۔ اب آپ کو بتائیں کہ ڈالر کی تیزی نہ رکی۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 2 روپے 25 پیسے مہنگا ہو گیا۔ رواں ہفتے چینی بینک کو قسط کی ادائیگی سے بھی مارکیٹ میں روپے پر دباؤ بڑھنے لگا۔ بدھ کو اوپن مارکیٹ میں ڈالر ریٹ 243 روپے جاری ہوا، تاہم اوپن مارکیٹ میں ڈالر 255 روپے سے زیادہ پر فروخت ہوتا رہا۔ ذرائع کے مطابق اوپن مارکیٹ میں ڈالر ریٹ ڈی کیپ کرنے سے ڈالر تیزی سے مہنگا ہوا۔ اوپن مارکیٹ کے لیے گزشتہ روز فوریکس ایسوسی ایشن نے ریٹ ڈی کیپ کرنے کی پالیسی بنائی تھی۔ دوسری طرف انٹر بینک میں بھی ڈالر 49 پیسے مہنگا ہوا۔ کھیلوں کے میدان کا رخ کرتے ہیں۔ آئی سی سی نے کھلاڑیوں کی ون ڈے رینکنگ جاری کر دی۔ بیٹرز کی رینکنگ میں پاکستان کے بابر اعظم کی پہلی پوزیشن برقرار۔ بالرز میں بھارت کے محمد سراج پہلے نمبر پر آ گئے۔ بیٹرز کی رینکنگ میں پاکستان کے امام الحق رینکنگ میں 5ویں نمبر پر موجود۔ انڈیا کے شبمن گل 2 درجے ترقی کے بعد 6 نمبر پر آ گئے۔ بھارت کے وراٹ کوہلی 1 درجے تنزلی کے بعد 7ویں نمبر پر چلے گئے، جبکہ بھارت کے روہت شرما 2 درجے ترقی کے بعد 9ویں نمبر پر آ گئے۔ بھارت کے محمد سراج بالرز کی رینکنگ میں پہلے نمبر پر آ گئے۔ پاکستان کے شاہین افریدی رینکنگ میں 8ویں نمبر پر موجود ہیں۔ بند روڈ گورنمنٹ گرلز کالج سے ملحقہ سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ طلبہ اور رہائشیوں کو مشکلات کا سامنا۔ اہل علاقہ کی شکایات کے باوجود انتظامیہ نے کوئی اقدامات نہ اٹھائے۔ مبین حیدر کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھیے۔ ٹوٹی سڑک، گندگی کے ڈھیر، مکینوں کا رہنا محال۔ گورنمنٹ گرلز کالج بند روڈ سے ملحقہ سڑک خستہ حالی کا شکار۔ سڑک کے بیچ میں پڑے کوڑے کے ڈھیر انتظامیہ کا منہ چڑھانے لگے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ متعدد بار انتظامیہ کو درخواستیں دے چکے، سڑک کی مرمت کے لیے کوئی نہیں آیا۔ کچرے کے ڈرم ہر طرف تعفن پھیلا رہے ہیں۔ مین راستہ یہ گزرنے کا راستہ ہے، ادھر کئی دفعہ ٹریفک جیم بھی ہو جاتی اسی وجہ سے، اور یہ ہے کہ یہ کوڑا یہاں کا یہی ہے، یہ ہلتا نہیں ہے یہاں سے، اور ڈبہ بھی یہیں کا یہی ہے۔ اہل علاقہ نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ سڑک کی تعمیر اور علاقے میں صفائی کے بہتر انتظامات کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کیے جائیں۔ کیمرامین صدام حسین کے ساتھ مبین حیدر، لاہور نیوز۔ واسطہ کے تمام شعبہ جات ایک ہی کمپنی پر مہربان ہو گئے۔ آڈیٹر جنرل نے بے ضابطگیوں میں ملوث کمپنی پر درجنوں اعتراضات اٹھا دیے۔ زین العابدین کی رپورٹ دیکھیے۔
LDA की ज़ेली एजेंसी वासा के शोबा O&M, इंजीनियरिंग, एडमिन और फाइनेंस में होने वाली बेज़ाब्तगियाँ। वासा के मुख्तलिफ शोबाजात पर ऑडिट पैराज की तादाद 500 से तजावुज़ कर गई। वासा ऑडिट पैराज का जवाब देने से कासिर रहा। वासा की ठेकेदार कंपनी SS ब्रादर्स की मुबैना बेज़ाब्तगियाँ सामने आ गईं। ऑडिटर जनरल ने SS ब्रादर्स कंपनी की बेज़ाब्तगियों पर दर्जनों एतराज़ात उठा दिए। माली साल 2020 और 21 के मूनसून फंड्स में निजी कॉन्ट्रैक्टर ने अफसरान से मिलकर बेज़ाब्तगियाँ की। निश्तर टाउन डायरेक्टरेट में मूनसून के फंड्स का गैर कानूनी इस्तेमाल किया गया। सतुकतला डिस्पोजल पंप की मुरम्मत में 6,25,000 रुपए की बेकायदगियाँ हुई। बोस्तान कॉलोनी लिफ्ट स्टेशन 1,71,000 और टाउनशिप सब डिवीजन में 2 लाख रुपए की बेज़ाब्तगियाँ सामने आईं। SS ब्रादर्स कंपनी को डायरेक्टरेट कंस्ट्रक्शन 1 ने भी नवाजा। DC 1 ने बड़चौक सीवरेज प्रोजेक्ट में 1,88,000 रुपए की बेज़ाब्तगियाँ की। भेकेवाल प्रोजेक्ट में बगैर मंजूरी 4,06,000 रुपए की इजाफी अदायगियाँ की गईं। मंजूर नजर फर्म SS ब्रादर्स पर नवाजिशात से मुतालिक ऑडिटर जनरल ने तफसीलात तलब कर ली हैं। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। बाब पाकिस्तान के अराजी से मुतल्लिक फाइनेंशियल मॉडल पर अमल ना हो सका। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी भी बाब पाकिस्तान की अराजी से मुतल्लिक कोई हतमी प्लान ना बना सकी। ये रिपोर्ट देखिए। बाब पाकिस्तान और हाई राइज बिल्डिंग के मंसूबे अमल दरामद के मुंतजिर। लाहौर के तारीखी वाल्टन एयरपोर्ट के बाद बाब पाकिस्तान की अराजी की भी कमर्शियल फरोख्त करने का फैसला किया गया था। जमीन प्राइवेट पार्टियों को फरोख्त की जाना थी। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी ने बाब पाकिस्तान की अराजी से मुतालिक कोई हतमी प्लान न बनाया। हालांकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बाब पाकिस्तान की अराजी अथॉरिटी में शामिल करने की मंजूरी दी थी। सियासी अदम इस्तेहकाम के बाइस पंजाब काबीना से मंजूरी न ली जा सकी। 3 हुकूमतें 15 साल में मंसूबे को मुकम्मल न। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए लाहौर न्यूज़।